بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مقصود ساجد، چند تازہ خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے انٹرنیشنل امریکہ کے بارے میں خبر ہے میرے پاس کہ امریکی سپریم کورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ہونے والے صدارتی انتخابات میں حصہ لے سکیں گے۔ ناظرین، یہ ڈونلڈ ٹرمپ وہی صدر ہیں جو موجودہ صدر سے پہلے رہے ہیں۔ صدارتی الیکشن نومبر 2024 میں ہونے کی توقع ہے، یعنی امریکہ کے صدارتی الیکشن کی بات ہو رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا نام تمام ریاستوں یعنی 50 ریاستیں ہیں امریکہ کی، تو تمام ریاستوں کے بیلٹ پیپرز پر ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ کی تمام جو ریاستیں ہیں 50 ان میں سے الیکشن لڑیں گے۔ صدر منتخب کرنے کا اختیار ووٹرز کے پاس ہے، کسی ریاست کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے، یعنی جتنی ریاستیں ہیں ان کا جو اختیارات ہے صدر چننے کا وہ وہاں کے ووٹروں کے پاس ہے، تو کوئی ریاست جو ہے بطور ریاست یہ فیصلہ نہیں کرتی، وہاں کے ووٹر جو ہیں، عوام جو ہیں وہ چنتے ہیں اپنے پریزیڈنٹ کو۔ امریکی سپریم کورٹ نے کیلوریڈو ریاستی عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ یہ غالباً کیلوریڈو ریاست جو ہے ادھر کی عدالت نے ان کے الیکشن لڑنے پہ پابندی لگائی تھی، تو اس کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا ہے اس فیصلے کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلک پرائمری میں بیلٹ پیپر پر ہوں گے۔ ناظرین، اگلی خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قانون دان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں پر فیصلہ بدنیتی پر مبنی ہے اور اختیارات سے تجاوز بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کے علاوہ کسی اور سیاسی جماعت کو دے سکے، یعنی یہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کے مخصوص نشستوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کی بجائے سنی اتحاد کونسل کی بجائے یا پی ٹی آئی کی بجائے باقی جماعتوں میں تقسیم کر دے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ آئین کے آرٹیکل 17، 51، 53 اور 218 کی کھلم کھلا خلاف ورزی اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 104 اور الیکشن رول 94 کی روح کے منافی ہے۔ اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ اور مختلف ہائی کورٹس میں چیلنج کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے مشہور قانون دان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو عہدے سے ہٹانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کیونکہ صادق سنجرانی نے بلوچستان سے ایم این اے کا الیکشن لڑا ہے، وہ جیتے بھی ہیں، اور الیکشن کمیشن نے ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، لہذا صادق سنجرانی بیک وقت 2 سیٹیں نہیں رکھ سکتے۔ وہ غیر قانونی طور پر چیئرمین سینٹ کی سیٹ پر کام کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے صادق سنجرانی کی بطور
सेनेटर नशिस्त खाली करार देने का हुक्म दे और लाहौर हाई कोर्ट सादिक संजरानी को बतौर चेयरमैन सेनेट काम करने से रोके। यानी संजरानी साहब के बारे में बात हो रही है। जो चेयरमैन सेनेट है उनके पास इस वक्त दो जो है नशिस्तें हैं, सेनेट के चेयरमैन भी हैं और बलूचिस्तान से इलेक्शन भी जीत गए हैं। तो उधर भी उन्होंने नोटिफिकेशन उनका हो चुका है, तो ताहम मेरा ख्याल उन्होंने अभी जो है अपना हल्फ नहीं उठाया, तो इधर भी काम कर रहे हैं बतौर चेयरमैन, जो कि उन्होंने कहा कि गैर कानूनी है, ये दो बेक वक्त दो सीटों पे काम नहीं कर सकते। पीटीआई के वकील नईम हैदर पंजोता ने कहा है कि इलेक्शन के बाद 2 हफ्ता के दौरान फार्म 45 का वेबसाइट पर अपलोड करना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, मगर 1 माह होने को है इलेक्शन कमीशन फार्म 45 अब तक अपलोड करने में नाकाम रहा है और ना ही हमारी रिज़र्व सीटों का फैसला कर सका है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटी निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। माफ़ करना। इंतखाबात में धांधली और फार्म 47 के ज़रिए करप्ट टोले को जतवा कर इलेक्शन कमीशन ने अवामी मैंडेट की तौहीन के साथ साथ आइन शिकनी भी की है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इन बेज़ाब्तगियों का हिसाब देना पड़ेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हल्का NA 154 के उम्मीदवार तैमूर मलिक ने कहा है कि मेरी इंतखाबी दरख्वास्त आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। उन्होंने कहा कि मेरी कानूनी टीम ने कमीशन को वजाहत करते हुए बताया है कि 6-7 उन्होंने अपने दलाइल दिए हैं, जो मैं नंबर वाइज आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, चूँकि फ़र्क सिर्फ 104 वोटों का है, जबकि मुस्तरद शुदा वोट 13,012 हैं, इसलिए दोबारा गिनती का कानूनी हक रखता हूँ। यानी अपने बारे में उन्होंने कहा कि चूँकि मेरे मुस्तरद वोट बहुत ज़्यादा हैं और जीतने वाले का मार्जिन बहुत कम है, तो लिहाजा मैं दोबारा गिनती का हक रखता हूँ, तो इसलिए मुझे अदालत जो है उसका सहारा लेना पड़ रहा है। नंबर 2 पर उन्होंने कहा है कि 12 फरवरी को फार्म 47, फार्म 48 और फार्म 49 का अजरा उम्मीदवार को इतला दिए बगैर और उम्मीदवार की गैर मौजूदगी में किया गया है। नंबर 3 पर उन्होंने कहा है कि कमीशन पहले ही NA 154 के मामले में दोबारा गिनती का हुक्म दे चुका है, जहां 7,000 वोटों का फ़र्क था। यानी पहले भी उन्होंने कहा कि एक दफ़ा गिनती का जो है दोबारा गिनती रिकाउंटिंग का आर्डर जो है वो दे चुका है इलेक्शन कमीशन। तो तब जो था वो 7,000 वोट मुस्तरद से, लेकिन अब उससे ज़्यादा करके 13,000 कर दिए गए हैं। नंबर 4 पर उन्होंने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श है और ये रिपोर्ट कोई ख़ास जवाब या वजूहात फराहम नहीं कर रही। नंबर 5 पे उन्होंने कहा कि गिलानी साहब ने पहले इलेक्शन लड़ने के लिए सेनेट की सीट छोड़ी और अब ये नशिस्त छोड़कर दोबारा, यानी अब MNA की सीट छोड़कर दोबारा सेनेट का इलेक्शन लड़ने का ऐलान करके उसे मजाक बना दिया है। यही यूसुफ रज़ा गिलानी जो साबिक प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, ये उनके हल्के की बात कर रहे हैं कि उन्होंने पहले ये नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए सेनेट की सीट पे रिज़ाइन किया, तो अब वो ये छोड़कर फिर दोबारा सेनेट में जाने का ऐलान कर रहे हैं, तो जैसे वो समझते हैं कि ये जो है उन्होंने इसको एक मजाक बना दिया है।
इंतखाबात के इनकाद पर बड़ा पैसा खर्च होता है। उन्होंने कहा है तैमूर मलिक साहब ने कि इंतखाबात के इनकाद पर बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है जो कि टैक्स दहिंदगान अदा करते हैं, इसलिए किसी भी सूरत में इस केस का फैसला होने तक यह नशिस्त उनकी नहीं है, यानी वो इसके दावेदार नहीं है, क्योंकि वो एक दफ़ा उधर से छोड़ के आए हैं, फिर उधर जा रहे हैं, तो लिहाजा जब तक कोई फैसला नहीं होता ये नशिस्त उनकी नहीं है। इस तरह नाजरीन नंबर 6 पर उन्होंने कहा है कि मुश्तबे पोलिंग स्टेशन पर मुस्तरद शुदा वोटों की दोबारा गिनती और नज़रसानी में तख़ीर उम्मीदवार के साथ इंसाफ से इनकार के मुतरादफ है। तो नाजरीन इस जो है शिक के अंदर उन्होंने शुबा ज़ाहिर किया है कि जो उनके मुश्तबे मशकूक जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके जो मुस्तरद शुदा वोट है उनकी दोबारा गिनती ना करना या उन पर नज़रसानी ना करना या उनमें तख़ीर करना, तो उनको डाउटफुल कर रही है कि कहीं उनके कोई रिज़ल्ट तब्दील तो नहीं किए जा रहे। नंबर 7 पे उन्होंने कहा कि अभी तक इस बात की कोई वजाहत नहीं है कि रिटर्निंग ऑफिसर और उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से फार्म 45 की कापियाँ क्यों मुहैया नहीं की गई हैं, जबकि हमने रिटर्निंग ऑफिसर मुतलका रिटर्न ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन दोनों को इन फार्म्स की फराहमी के लिए दरख्वास्तें भी दे रखी हैं। इलेक्शन कमीशन ने फ्री कैन के वकील के दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया है और उम्मीद है कि इस वाज़े केस में मेरे साथ इंसाफ होगा। नाज़रीन बानी पीटीआई इमरान खान का समुंदर पार पाकिस्तानियों के साथ मजबूत रिश्ता है और उनके विजन के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पहले ओवरसीज़ कमीशन का ऐलान कर दिया है। इस इक़दाम का मकसद मुल्क भर में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में मुकीम हमारे तारकीन वतन की मदद करना है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की गैर मुतज़लज़ल हमायत पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शुक्रिया अदा किया है। पीटीआई के रहनुमा एमपीए मियां असलम इकबाल ने कहा है कि इंतखाबात तो हो गए मगर पाकिस्तान में जारी फस्तायत का दौर मज़ीद तारीक हो गया है। उन्होंने कहा है कि ज़िले शाह की तर्ज पर पंजाब पुलिस ने एक और मासूम जान को अपनी दरिंदगी से मौत के दहाने पर ला खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि इस मुल्क की बदकिस्मती है कि मॉडल टाउन के कातल यहाँ धांधला करके वज़ीर आज़म बना दिए गए हैं, जबकि उनकी अगली नस्ल ने इंतहाई कलील वक्त में चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का सफ़र तय कर लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अहमद शाह को कुछ भी हुआ तो उसका ज़िम्मा डाकू रानी के सर होगा। पुलिस कस्टडी में अहमद शाह के सर पर शदीद और ख़तरनाक चोटें आई हैं, उसके हाथों पर भी तशद्दुद के निशानात हैं। उन्होंने उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ भी दी है। नाज़रीन दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे लिए, आपके लिए और वतन अज़ीज़ के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। नाज़रीन आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल पाक न्यूज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक कर दें और अपने फीडबैक से भी
آگاہ فرمائیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔